شہر اولیا کے سینکڑوں خاندانوں کی زندگیاں خطرے میں ہے۔ ملتان کی 700 سے زائد مخدوش عمارات کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک دوسرے کے سہارے کھڑی عمارتیں کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے جنوبی پنجاب میں کل سے شدید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ انتظامیہ کا صرف نوٹسز اور الرٹس پر اتفاق، ارباب اختیار نے بھی سنگین مسئلے سے نظریں چرا دی۔ ملتان شہر میں پرانی عمارتیں خوف کی علامت بن گئی۔ اندرون ملتان میں 700 سے زائد پرانی عمارتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جبکہ بیشتر عمارتیں ایک دوسرے کے سہارے کھڑی ہیں۔ ساون کا موسم شروع ہوتے ہی بوسیدہ عمارتوں میں رہنے والے مکین پریشان ہو گئے۔ ان کو اگر بنواتے ہیں تو یہاں پر وہ وسائل نہیں ہے لوگوں کے کہ ان کو بنوا پائیں۔ اٹلی کی نون لیگ کی گورنمنٹ میں اٹلی سے فنڈ آیا تھا یہاں پر اس کو اندرون شہر کے لیے، جو ایم پیز اور ایم این ایز جو ہیں نون لیگ کے، انہوں نے اپنے گھر تو بنوا لیے، لیکن ہم غریبوں کا علاقہ ویسا کا ویسا ہی چھوڑ دیا۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ وہ غریب لوگ ہیں، کئی سالوں سے آباء و اجداد کی عمارتوں میں مقیم ہیں۔ 2 مرلے کے مکان میں پورا خاندان آباد ہے۔ بارش کے موسم میں خوف کے مارے سو بھی نہیں سکتے۔ صرف ڈر اور خوف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، اللہ ہی اللہ ہوتی ہے۔ جب اپنی طرف دیکھتے ہیں جیب اجازت نہیں دیتی، بچے سو بھی جاتے ہیں تو ہم ان کا پیارا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی اوپر۔ ہر سال انتظامیہ کی جانب سے نوٹسز اور الرٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ رکن صوبائی اسمبلی اور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کہتے ہیں وال سٹی پروجیکٹ کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ ہر صورت 2021 کے اینڈ تک بہت سارے معاملات کو حل کر لیں گے۔ اس وقت بھی اگر آپ کی ٹیم وزٹ کرے تو صرافہ بازار جو ساؤتھ پنجاب کا دوسرا بڑا صرافہ بازار ہے، جہاں بہت ساری ایسی بلڈنگ تھی جو کسی بعض اوقات کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتی تھی، ان کو نہ صرف ان کو ریپیئر کیا گیا ہے بلکہ ان کو ملتان کے کلچر کے مطابق آرگنائز بھی کیا گیا ہے۔ اندرون شہر کی ان مخدوش عمارتوں کے مکینوں نے انتظامیہ اور حکومت سے مدد کی اپیل کر دی۔ ملتان کے اندرون میں واقع یہ عمارتیں ہر وقت خطرے کی گھنٹی بنی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انتظامیہ ان کے خلاف ایکشن لے تاکہ برسات کے موسم میں کسی بھی قسم کے سانحے سے بچا جا سکے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ شہر اولیا کی آلودگی ہوگی ختم اور زرخیزی میں ہوگا اضافہ۔ ملتان کے پہلے میں واقعی جنگل لگانے کے لیے وہاڑی چوک پر شجرکاری، 6 کنال رقبے پر 6500 درخت لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ارم سلیمی کی کل تک کام مکمل کرنے کی یقین دہانی۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود اور اہم شخصیات جنگل کا افتتاح کریں گے۔ ملتان کو گرد اور گرمی سے بچانے کی تیاریاں۔ شہر اولیا میں پہلے میں واقعی جنگل لگانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ ملتان میں پہلے میں واقعی جنگل لگانے کے کام کا آغاز ہو گیا۔ ڈویژن کا پہلا میں واقعی جنگل وہاڑی چوک پر لگایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ارم سلیمی کا کہنا تھا کہ میں واقعی جنگل 6 کنال پر مشتمل ہے۔ میں واقعی پروجیکٹ کے تحت 6500 درخت لگائے جائیں گے۔ مجموعی طور پر ملتان میں 5 میں واقعی جنگل لگائے جائیں گے۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود جلد جنگل کا افتتاح کریں گے۔ بہاولپور میں والدین کی نافرمانی پر نااہل بیٹا جیل میں بند۔ پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس کے تحت غلام حسین کے خلاف مقدمہ درج۔ بوڑھی ماں نااہل بیٹے کی شکایت لے کر ڈی پی او آفس پہنچی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں بہاولپور سے، جہاں پر بوڑھی ماں کی شکایت پر نااہل بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بوڑھی ماں نے ڈی پی او آفس پہنچ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی تھی، جس پر غلام حسین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور غلام حسین کے خلاف پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بہاولپور میں والدین کی نافرمانی پر نااہل بیٹا جیل میں بند ہو چکا ہے۔ پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس کے تحت غلام حسین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بوڑھی ماں نااہل بیٹے کی شکایت لے کر ڈی پی او آفس پہنچی تھی، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے غلام حسین کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ لیا میں بدبخت اولاد والدین کا احترام بھول گئی۔ بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، 8 بچے مگر کسی ایک کو بھی رحم نہ آیا۔ بزرگ میاں بیوی ڈیرہ غازی خان سے چوک اعظم لیا پہنچ گئے، 3 ماہ سے جھونپڑی بنا کر رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ ہے 70 سالہ اسلم خان، جس نے ساری زندگی ٹرک چلا کر بچوں کو پالا۔ میاں بیوی بڑھاپے کو پہنچے تو جوان بچوں نے چھوڑ دیا۔ ڈیرہ غازی خان کے رہائشی بوڑھے والدین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ چوک اعظم میں جھونپڑی بنا کر زندگی کے بقیہ دن پورے کر رہے ہیں۔ اسلم خان کا کہنا تھا کہ بچے چھوڑ گئے، گھر بھی نہیں رہا، اولاد سے مایوس ہو چکا ہوں۔ انہوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں کچھ میری گھر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا دھنو تو کم انہوں کو بس چھوڑ دے، بس ختم۔ ہوں سے کی میں درانے پہ کی میں بالا وار میں تھا رسن ہوں واپس پہ دے تو نہ بال تو فون کریں نہ بال بچے فون کریں نہ بچے فون نہیں کر دیں۔
असलम खान की बीवी का कहना था कि बच्चों की याद आती है मगर अब वापस नहीं जाएंगे। मेरा पता से वैसे ऐसा होता है, नहीं जाना से बच्चे नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं जाना बस ऐसी थे वैसे। घर से दरबदर मियाँ बीवी गुजारा अब शहरों की इमदाद से होता है। हुकूमत और मुखिर हजरात के ताउन से अगर असलम खान को एक कमरा बना दिया जाए तो जिंदगी के बाकी दिन सुकून से गुजर सकते हैं। बुढ़ापे का शिकार बेजारो मददगार असलम खान उसकी बीवी इस छोटी सी कुटिया के अंदर कोसों दूर इस इंतजार में है कि कब कोई मसीहा उनकी मदद को पहुंचता है। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, लिया। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की रिटायरमेंट के बाद पहली मरतबा हाई कोर्ट बार मुल्तान आमद तकरीब से खिताब में कहा कि ज़मीर मुतमईन है, करियर में कोई फैसला बदनियानी से नहीं किया। इस खत्ते के मसाइल के हल के लिए जो कांटे निकाल सकता था वो निकाल दी। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिटायरमेंट के बाद पहली मरतबा हाई कोर्ट बार मुल्तान का दौरा किया। अपने एजाज में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, ये तय किया था कि रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले अपनी बार में जाऊंगा। तारीख में पहली मरतबा मुल्तान बार को लाहौर बार से ज्यादा फंड्स दिए। बार की मजबूती हड़तालों में नहीं बल्कि केसेस की मजबूत तैयारी में है। हाई कोर्ट की कॉलोनी का इंतकाल आखिरी लम्हात में करा दिया, जबकि स्टेट ऑफ द आर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स खिते के अवाम के लिए तोहफा है। बार की मजबूती वकील के मुकदमे की तैयारी में है। जितनी मेहनती बार होगी उतनी ही बार ज्यादा मजबूत होगी, उतनी ही उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, डीजी खान में शोबा सेहत के रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। टीचिंग अस्पताल में 3 अरब 80 करोड़ रुपए की मालियत से इमरजेंसी और ओपीडी यूनिट तामीर कर रहे हैं। मशीर सेहत हनीफा पताफी की गुफ्तगू, बोले तरक्याती बजट का 35% जनूबी पंजाब पर खर्च होगा। जिला डेरा गाजी खान में शोबा सेहत के तरक्याती मंसूबों की सूरत हाल के हवाले से मुशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी का कहना है कि सेहत के प्रोजेक्ट्स वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दिल के करीब हैं। इन मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। वो खुद इन मंसूबों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो तौसा TH की रिवैम्पिंग हो रही है, TH की कोट छुट्टा की रिवैम्पिंग हो रही है। जितने हमारे यहाँ पे RHC हैं उनकी रिवैम्पिंग हो रही है। BHG को 24/7 किया जा रहा है। तो हेल्थ का जो शोबा है तो वजीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब है। तो मुशीर सेहत हनीफ पताफी का कहना था कि स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट पर तेजी से काम जारी है। इस मंसूबे का पहला फेज जून 2022 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। टीचिंग अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है। वजीर आला ने इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था। डेरा गाजी खान में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है तेजी से उसका काम जारी है और इंशाल्लाह जून 2022 में इंशाल्लाह हम इसकी ओपनिंग करेंगे। 300 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग CM साहब ने कर दी है, उसका काम जारी है। हनीफ पताफी का मजीद कहना था कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा कोटचट्टा और दीगर की रिवैम्पिंग की जा रही है। जनूबी पंजाब भर में सेहत के मंसूबे जारी हैं। तरक्याती बजट का 35% जनूबी पंजाब पर खर्च होगा। कैमरामैन रेहान अली के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। और गरीब के लिए बुरी खबर यह है कि उसके लिए अपना घर बनाना मजीद मुश्किल हो चुका है। मुल्तान में सरिये के बाद TR और गार्डर भी महंगे हो चुके हैं। कीमतों में 20 रुपये फी किलो इजाफा, जबकि TR की कीमत 160 और गार्डर 165 रुपये किलो हो गई। तामीराती मटेरियल की कीमतों में आए रोज इजाफा होने लगा। सरिया के बाद TR और गार्डर के रेट्स में भी नुमायां इजाफा हो गया। TR की कीमत फी किलो 140 से बढ़कर 160 रुपए तक पहुंच गई है। कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से नालान दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अब मैं आज परचेज करने आऊँ 160 रुपए हो गया। बताए मैं कैसे परचेज करूँ? अगर 2 लाख का मटेरियल उस पर 20,000 रुपए का फर्क आ गया तो मैं तो बिल्डिंग नहीं बना सकता। तो मेरे ख्याल तो गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हुई है, कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये तो इस तरह बिल्कुल काम खराब है। ये तो गार्डर की कीमत में 145 से बढ़कर 165 रुपए तक पहुंच गई है। तामीराती मटेरियल की कीमत में मुसलसल इजाफे से परेशान शहरी कहते हैं कि इतने पैसे नहीं कि महंगा सामान ले सकें। थोड़ा थोड़ा जमा करके आए हैं खरीदने के लिए, तो ये 165 रुपए बता रहे हैं। अब हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये खरीद सके। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि महंगाई अगर बढ़ानी भी है तो कुछ हमें रिलीफ दी जाए। तामीराती मटेरियल की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफे से गरीब आवाम तशवीश में मुब्तला हैं कि गरीब आदमी इतनी महंगाई के दौर में अपना घर कैसे बनाए। सरिये और गार्डर की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम काफी परेशान है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रही है कि सरिये और गार्डर की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी आसानी से अपना मकान बना सके। कैमरामैन करार हैदर के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान।
उधर मारूफ डांसर महक मलिक डीपीओ विहाड़ी के सामने पेश हो गए। इल्जामात बेबुनियाद और मुकदमा झूठा करार दे दिया। कहा अगवा का झूठा ड्रामा रचाकर शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। नौजवान के अगवा से कोई लेना देना नहीं। डीपीओ की तफ्तीश से मुतमईन हूं और अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हलफ भी दे चुकी हूँ, तो मैंने तो देखा तक नहीं है, मुझे पता ही नहीं है वो कौन है कैसा है, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है। सिर्फ बस मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये मेरी नाम को मिसयूज किया जा रहा है और बस इनके मकासद जो है इंशाल्लाह वो सामने आ जाएंगे। प्रोपेगेंडा है, मेरे नाम को मिसयूज किया जा रहा है। अभी हम डीपीओ साहब के पेश हुए हैं तो इंशाल्लाह उधर से हमें अच्छी खबर आएगी, इंसाफ मिलेगा। मुझे अपनी अदालतों, अपनी हुकूमत, अपनी पुलिस वालों पर यकीन है। आगे बढ़कर आपको बताएं, स्पेशल असिस्टेंट वजीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी के 23 राजनपुरी बकरे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। 23 सफेद रंग के भारी भरकम बकरों को देखने के लिए शहरियों का रश पड़ गया। जुनैद अनवर इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी के 23 राजनपुरी बकरों की धूम मच गई। सफेद रंग के 23 बकरों को देखने के लिए शहरी उमड़ आए। एमपीए जावेद अख्तर अंसारी ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों को खुद चारा खिलाते हैं। अल्लाह ताला हर साल कुर्बानी की सादत देता है। कुर्बानी के इन जानवरों को बच्चों की तरह पालना पड़ता है। बकरों को दूध मेवे खिलाए जाते हैं। पालते हैं, जिनसे तैयार कराते हैं, वो आदमी रखे हुए हैं हमने। आप देख भी रहे हैं कि ये इनको खिलाना पड़ता है, इनको खिलाना पड़ता है, ये खाते नहीं हैं कि ये हाथों से इनको खिला रहे हैं। बच्चों का कहना था कि बकरे उनके दोस्त बन चुके हैं, वो इनके साथ खेलते हैं, मगर ईद पर जब बकरे ज़िबा होंगे तो उन्हें दुख होगा। ये बहुत अच्छे बकरे हैं, हम इनके साथ खेलते भी हैं, इनको खिलाते भी हैं और तब ये ईद पे कुर्बान होंगे, हमें बहुत अफसोस भी होगा। ये सारे सफेद रंग के बकरे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमने इनको पूरा साल तैयार किया है, हम इनके साथ खेलते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत प्यारे बकरे, हम इनके रोज ज्यादा खेलते हैं। ये सारे सफेद हैं, सारे राजनपुरी हैं, जब ये कुर्बान होने में बहुत अफसोस होगा। जावेद अख्तर अंसारी का कहना था कि एक बकरे का वजन 2 से 3 मन के करीब है, जबकि ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत कुर्बानी अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए। स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी की जानिब से ईद कुर्बान के लिए 23 राजनपुरी बकरे लिए गए हैं, जिनका वजन 2.5 से 5 मन के करीब है। उनके घर पर मौजूद इन राजनपुरी बकरों को देखने के लिए दूर दराज से शहरी आ रहे हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। और आपको बताएं, ख्वाजा सराओं को भी कुर्बानी के जानवरों की तलाश। विहाड़ी में ख्वाजा सरा जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंच गए। ख्वाजा सराओं को भी कुर्बानी के जानवरों की तलाश। बिहाड़ी में ख्वाजा सरा मवेशी मंडी पहुंच गए। जानवरों की बजाय ख्वाजा सरा लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। ख्वाजा सरा बकरों के साथ सेल्फियां और टिकटॉक बनाते रहे। अदाएं दिखाने के बावजूद भी ख्वाजा सरा जानवरों की कीमत कम न करवा सके। ख्वाजा सरा चांदनी का कहना था कि जानवरों की कीमतें हमारे तो बस से बाहर हैं। जानवर खरीदने के लिए हम लोग इधर बकर मंडी में आए हैं, लेकिन काफी जानवर देखे हैं, छोटे बड़े, लेकिन जानवरों के रेट भी बहुत ज्यादा है। महंगाई की वजह से पता नहीं ज्यादा कार है किस वजह से, लेकिन वजन भी चेक करते हैं, वजन भी कम है और रेट भी ज्यादा है। पहले भी 2-4 साल पहले हमने खरीदे थे, पिछले साल खरीदे थे, लेकिन रेट कम था। इस बार रेट बहुत ज्यादा बता रहे हैं। ख्वाजा सरा जानवर तो ना खरीद सके, मगर मंडी में रौनक खूब लगी रही। मुल्तान में सीईओ सोनी केबल राना मोहम्मद अयूब के वालिद के हाजी मोहम्मद इकबाल की रस्म कुल अदा की गई। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। रस्म कुल मस्जिद जामे अल नूर, काज़मी चौक, शालीमार कॉलोनी में मुनक़्क़िद की गई। साबिक एमपीए उस्मान भट्टी, इलाका मकीन और अजीज़ो क़ारिब समेत समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। रस्म कुल में राना अयूब, राना महबूब, राना नासिर, राना एहसन और राना उस्मान ने शिरकत की। राना नुमान, राना हसनैन, राना फरुख, राना जहांजेब, राना मौदूद और राना अहमद भी शरीक हुए। इलामा कारी मुफ्ती सदीक सैयदी ने खिताब किया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ईद की तैयारियां जारी हैं। 2 बरस से खराब मशीनरी काम के लिए तैयार है। 14 गाड़ियों के लिए नए टायर मुल्तान पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल नियाजी की इस रिपोर्ट में।
मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर की सफाई के लिए इकदाम तेज कर दिए। कंपनी की गाड़ियों को फॉल करने के लिए टायर्स मंगवा लिए गए। गाड़ियों के लिए टायर्स और स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी की खुशी में केक काटा गया। तकरीब में वर्कशॉप के अमले ने भी शिरकत की। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुल इस्लाम डोगर ने कहा कि कंपनी की तमाम गाड़ियों के टायर्स इंतहाई नाकारा हो चुके थे। 1,70,00,000 रुपए की लागत से 490 टायर्स खरीदे गए, जिसकी पहली खेप आज मुल्तान पहुंच गई है। ये आए पड़े हैं, ये अब गाड़ियों को डल जाएंगे। ईद पे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला बहुत मुतहर्रक तरीके से बहुत अच्छी सफाई करके हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से मुल्तान के शहरियों को ईद का तोहफा पेश करेंगे। फखरुल इस्लाम डोगर का मजीद कहना था कि कंट्रैक्टर ने गाड़ियों के लिए टायरों की तस्वीर शुरू कर दी है। टायर खरीदने के लिए 2 कंट्रैक्टर्स की खिदमात हासिल की गई थी। कम्युनिकेशन ऑफिसर फरिया हाशिमी ने बताया कि कंपनी इंतजामिया की जानिब से इकदाम को तेज किया जा रहा है। काफी अरसे से हमारा प्रोसीजर तो चल रहा था, टेंडर हमारा हो चुका था और उसको अब ये जैसा कि आप देख लें हमारे टायर की सप्लाई भी आ गई है। स्पेयर पार्ट्स भी हमारे वो जो टेंडर था वो भी हो गया और वो स्पेयर पार्ट्स भी आ गए। अब इंशाल्लाह ईद पे हमारा सक्सेसफुल होगा सारा काम। 3 दिन रात मेहनत के बाद आज ये टायर खरीदने में कामयाब हुए हैं और इंशाल्लाह ये वाकई मुल्तान के रहने वालों के लिए तोहफा होगा और इंशाल्लाह सफाई में बेहतरी आएगी। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना था कि कंपनी वर्कर्स ईद उल अज़हा के मौके पर मिसाली सफाई के जरिए शहरियों के दिल जीतेंगे और कंपनी कारकर्दगी के हवाले से अलियाने मुल्तान के मियार पर पूरा उतरेगी। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS और BDS के नताज का ऐलान कर दिया गया। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान की फातिमा मुनीर ने 539 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की रुबाब शबीर की दूसरी और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के सादुर रहमान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आपको अपडेट करें, फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS और BDS के नताज का ऐलान कर दिया गया है। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान की फातिमा मुनीर ने 539 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की रुबाब शबीर की दूसरी और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के सादुर रहमान ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। MP और पार्लिमानी सेक्रेटरी रजा बुखारी का फयाज पार्क का दौरा, DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल भी हमरा थे। MP ने खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाया। रजा बुखारी ने पार्क की ताज़ीन और आइश का जायजा भी लिया। रजा बुखारी ने कहा, वज़ीर आज़म की बिलियन ट्री सुनामी मुहिम पूरे मुल्क में जारी है। इस वक्त पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, इसी वजह से पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की जरूरत है। इस हफ्ते 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने कहा, पुलिस भी इस मुहिम में अपना किरदार अदा कर रही है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली ने आम को कीमियाई जहर से बचाने के लिए IPM प्लान तैयार करने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर मैंगो रिसर्च अब्दुल गफ्फार को ग्रेवाल को मॉडल तैयार करने की हिदायत कर दी। कीड़ों के मरबूत इंसदाद के प्लान का मकसद आम की फसल को जहरीले स्प्रे से बचाना और बेहतर पैदावार हासिल करना है। आम के दुश्मन कीड़ों को कंट्रोल करने और दोस्त कीड़ों की पहचान के लिए मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जल्द रिपोर्ट तैयार करेगा। काश्तकारों को आइंदा दिनों में जामे और मुफस्सल एडवाइजरी जारी की जाएगी। लियाकतपुर अब्बासिया फॉरेस्ट रेंज सब डिवीजन में हफ्ता शजरकारी के तहत 6000 पौधे एक ही मरतबा लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद ने भी पौधा लगाया। देखते हैं आसिम सदीक की ये रिपोर्ट। मौसमाती तब्दीली का मुकाबला अपने शहर गांव को सरसब्ज बनाकर ही किया जा सकता है। लियाकतपुर के इलाके में 10,000 एकड़ पर मुश्तमिल अब्बासिया फॉरेस्ट रेंज सब डिवीजन है। फॉरेस्ट रेंज के 5000 रकबा पर पौधे भी लगाने का काम शुरू कर दिया गया। महकमा जंगलात के अमला रेस्क्यू 1112 सिविल एडमिनिस्ट्रेशन समेत समाजी शख्सियात ने फॉरेस्ट रेंज में पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने कहा कि शहरों को खूबसूरत और सरसब्ज बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आज हमने यहाँ अब्बासिया फॉरेस्ट सब डिवीजन में प्लांटेशन की है। ये अब्बासिया फॉरेस्ट सब डिवीजन 10,000 एकड़ पे फैला हुआ है। इसमें 5,000 एकड़ पे फॉरेस्टेशन हुई और बाकी 5,000 हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पर 10,000 पौधे 6,000 हमने अभी लगाए हैं और कल 4,000 पौधे हमारे लगेंगे। तो टोटल इस कैंपेन में हम 10,000 पौधे जो हैं वो इकट्ठे लगाएंगे। अब्बासिया फॉरेस्ट रेंज में किक्कर, नीम, सुखचैन और अर्जुन के पौधे लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और अभी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने वेलकम बहावलपुर मॉन्यूमेंट का इफ्तिताह कर दिया। DGPH और महकमा माहौलियात के अफसरान के साथ मिलकर पौधा भी लगाया। अतर लाशारी रिपोर्ट करेंगे।
बहावलपुर की खूबसूरती में एक और इजाफा। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी ने शहर के दाखिली रास्ते पर वेलकम टू बहावलपुर का मोनूमेंट लगा दिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठियार का कहना था कि ऐसे मोनूमेंट बहावलपुर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। पूरे सूबे में इस वक्त जो ब्यूटिफिकेशन है और खासतौर पर ट्री प्लांटेशन वो जारी व सारी है, तो बहावलपुर की ये एंट्री जिसमें ये मुल्तान राउंड अबाउट की ये जो जगह है, ये एक पहला इंप्रेशन है बहावलपुर में एंट्री के वक्त का। और यहाँ पे ये PHA ने एक नहायत ही खूबसूरत ये मोन्यूमेंट ऐड करके जिसमें वेलकम और खुश आमदेद कर रहे हैं जो भी लोग बहावलपुर में दाखिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने DG PHA और महकमा माहौलियात के अफसरान के साथ मिलकर पौधा भी लगाया। डायरेक्टर जनरल PHA सुमेरा रब्बानी का कहना था कि शहर को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने का सफर जारी रहेगा। पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का इनका स्टार्ट किया गया था और जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है PHA की भरपूर कोशिश है। हम दिन रात इसी कोशिश में हैं कि बहावलपुर को ग्रीन बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन। काफ़ी हमने डेवलपमेंट स्कीम्स थी, उनके तहत भी काफ़ी राउंड अबाउट्स पे आपने देखा होगा काम किया है। ये भी है, इसके अलावा हमारी और भी स्कीम्स ऑन गोइंग है। स्कीम्स के अलावा जो ट्री प्लांटेशन है उस पर भी हमारा फोकस है। इफ्तिताही तकरीब में इंस्पेक्टर महकमा माहौलियात वहीद मुराद लाशारी और दीगर ने शिरकत की। बहावलपुर के मोनूमेंट्स में एक और खूबसूरत मोनूमेंट का इजाफा करके शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाए गए हैं और जिले इंतजामिया का यही कहना है कि ये सफर अभी जारी है और इसको मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। मियांवाली में क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों में आला समात तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्ठा ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा, ईसा खेल में भी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मिजाज। मियांवाली में क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों को आला समात दिए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने खसूसी बच्चों को आला समात दिए। उनका कहना था कि आला समात से ये बच्चे आम इंसानों की तरह सुन पाएंगे। मुआयने के बाद कुदरती समात के मुताबिक बच्चों को आला समात दिए गए हैं। स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में आज मियांवाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमने 53 बच्चों में आला समात जो कि बड़े मॉडर्न डिवाइसेस हैं और यूरोप से मैन्युफैक्चर्ड हैं, उनकी हेयरिंग असेसमेंट करके आज हमने उनमें वो तकसीम किए। आला समात की फरहमी पर खसूसी बच्चियों ने मासूमाना अंदाज में खुशी का इजहार किया। इशारों और तोतली जुबान में शुक्रिया भी अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आला समात के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने खसूसी बच्चों के वालिदैन को खुशखबरी दी कि तहसील ईसा खेल में भी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बनाया जा रहा है, जिस पर 8 करोड़ रुपए लागत आएगी। इनके लिए खुशी की बात यह है कि अभी इन्हें बड़े दूर अफ्तादा इलाकों से मियांवाली हेडक्वार्टर में आना पड़ता है। इस साल ADP में हमने ईसा खेल में एक नया स्पेशल एजुकेशन स्कूल रखा है और वो 8 करोड़ की मालियत से बनेगा। डिप्टी कमिश्नर के अलावा तकरीब में दीगर सरकारी इदारों के अफसरान भी शरीक थे। सुनने की हिस्से से महरूम 50 से जायद बच्चों को आला समात दिए गए हैं। अब यकीनी बात है कि आला समात के बाद वो आम इंसानों की तरह सुन सकेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और नाज़रीन, इंडस हाईवे पर डेरा गाजी खान का पाकिस्तान चौक, मशरिक पंजाब, मगरिब बलोचिस्तान, शुमाल खैबर पख्तूनख्वा और जनूब में सिंध है। जहां जाना चाहें एक जितना फासला पाएंगे। पाकिस्तानी झंडे के रंग में रंगा जंगी जहाज चौराहे की शान बढ़ा रहा है। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। इंडस हाईवे पर डेरा गाजी खान का मशहूर पाकिस्तान चौक है। चौराहा भी ऐसा कि चौक से मशरिक में पंजाब, मगरिब में बलोचिस्तान, शुमाल में KPK और जनूब में सिंध है। शहरी का कहना है कि इस चौराहे से आप जहां जाना चाहें एक जितना फासला है। यही खासियत इस चौराहे को मुल्क भर में मुमताज बनाती है। पाकिस्तान चौक जेरा के पहले गिदाडाला चौक सड़ी ना है, जेरा के सारे सूबे को सेंटर आके मिले नहीं, इंतहाई खूबसूरत बनाया गया। पाकिस्तान चौक पर पाकिस्तानी झंडे के रंग में रंगा जंगी जहाज चौराहे की शान बढ़ा रहा है। चौराहे पर दिन भर टिकटॉक और तस्वीरें बनवाने वालों का रश लगा रहता है। शहरियों का कहना है कि ये चौराहा डेरा गाजी खान की पहचान है। ये बहुत ही खूबसूरत चौक बनाया गया है DG खान में,
اس کے اوپر لوگ وہاں جاتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں. کافی خوبصورت چوک ہے اور اس کو اس وقت پاکستان چوک کا نام دیا گیا ہے، ڈیولپ کیا گیا ہے. اس کے اوپر ایک جہاز رکھ دیا گیا ہے. چوراہے پر لاہور جانے والے راستے پر سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی افتتاحی تختی، جبکہ ڈیرہ غازی خان اور کوئٹہ جانے والے راستے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی افتتاحی تختی نصب ہے. کیمرامین ریحان علی کے ہمراہ رضا ملک، ڈیرہ غازی خان. اور اب بات کچھ موسم کے حوالے سے. گرمی کے ستائے جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے عید پر خوشخبری ہے. محکمہ موسمیات نے جنوبی پنجاب میں پیر سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی. پیر کی شام سے جمعرات کے درمیان تک جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے. گرمی کے ستائے جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے عید سے قبل اچھی خبر سامنے آ گئی. محکمہ موسمیات نے جنوبی پنجاب میں پیر سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی. پیر کی شام سے جمعرات کے درمیان جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملتان، خانیوال، لیا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، بہاولپور، ساہیوال اور بھکر میں بارش کا امکان ہے. عید کے پہلے 2 دن جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کالی گھٹائیں چھائی رہیں گی. نامور خطاط گلزار ندیم اور کاتب قرآن پاک محمد شریف کے فن پاروں کی نمائش مسجد رابعہ مشہور کہڑوڑ پکا میں کی گئی. نمائش کا اہتمام سماجی رہنما حاجی محمد نعیم اور افتتاح سابق سٹی ناظم ملک غضنفر جویہ نے کیا. مزید جانتے ہیں عاشق حسین قریشی کی اس رپورٹ میں. ملک کے نامور خطاط گلزار ندیم کے فن پاروں کی نمائش مسجد رابعہ مشہود میں کی گئی. نمائش کا افتتاح سابق سٹی ناظم کہڑوڑ پکا ملک غضنفر جویہ نے کیا. انہوں نے گلزار ندیم اور محمد شریف کے بنے ہوئے فن کو خوب سراہا اور نقد انعام سے نوازا. قرآنی آیات کی فن پارے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کاش ہمارے ارباب اختیار یا ہم بھی اس کا حصہ رہے ہیں ان کو فیور دیتے اور آج ان سے بھی بہت آگے یہ ہوتے. ملک غضنفر جویہ نے کہا ہماری بدقسمتی ہے ہم گلزار ندیم جیسے آرٹسٹ کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کر سکے جو ان کا حق ہے. میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. نمائش کو دیکھنے کے لیے عوام کی کثیر تعداد موجود تھی. یاد رہی اس خوبصورت مسجد کا افتتاح کچھ عرصہ پہلے قیام پاکستان کے کارکن مسٹر جاوید حسن اور ان کی بیٹی رابعہ مشہود نے کیا تھا. قرآنی خطاطی جو ہے میں اس کو عام کروں اور اس لیے کہ جتنی مرتبہ ہم لفظ لکھتے رہیں گے اللہ کے ہاں عبادت کرتے رہیں گے کہ یہ پورے پاکستان کے جو گھر ہیں یہ دیوار بن جائے، میں ان دیواروں پر قرآن کو سجا دوں. آرٹسٹ گلزار ندیم نے کہا میرا مقصد ہے خطاطی کو عام کروں اور ہم جتنی دفعہ اللہ کا نام لکھتے رہیں گے عبادت کرتے رہیں گے چاہتا ہوں ہر کسی کو قرآن پاک لکھنے کی ترغیب دوں. دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں خطاطی اسلامی تعلیمات کا ایک جزو ہے. شاید خطاطی دیکھنے والوں کو اس کی محنت اور ریاضت کا اتنا اندازہ نہ ہو کہ یہ فن کتنا محنت طلب ہے. کیمرہ ٹیم یاسر بریار کے ہمراہ عاشق قریشی، روہی نیوز، کہڑوڑ پکا.